we are presently in New York, and because of bad weather conditions, our flight from Atlanta to India, we could not board, and that's why we have got a different route where we are now in New York. And as I always say, that when the population grows, the population brings the challenges. And here, for the first time in 2 months of stay in US, we could see that police has been deputed at the transportation gates just to check whether people are really paying and giving the ticket, not jumping the station, and they are not the entrances. So that way the challenge is there. This train will take us to World Trade Center, and that would be our visit. We have a flight in the night to India, and that's where we are out. Bad weather, and this is the first time I could see that police has been deployed at the public transportation gates so that people don't flout and don't jump these gates. It's very different from all the cities which we have seen. New York seems to be really a metro sort of environment. Not good, not at all comfortable and easy. It seems like heavily complicated. Let's see. Watch me find that check out. Shotguns gonna turn this bitch out. One nigga play all you niggas now. Drip from my neck now. These niggas tryna find my way now. Cap, no hands down. Show me we talk. एंड ये कोई पार्टी वाला ग्रुप है जो ट्रेन में ड्रिंक भी कर रहा है. बड़ा ही अजीब सा एनवायरनमेंट है, तो ठीक है. न्यूयॉर्क सिटी है, इसके जनरल स्क्वायर पे हम लोग हैं. आप भी देख लीजिए प्रॉब्लम्स अमेरिका का. तो ये है न्यूयॉर्क का मेन रेलवे स्टेशन या जंक्शन जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कन्वर्ज होता है, राजीव चौक जैसा. तो शानदार बिल्डिंग है, थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ा है. वहाँ पे बहुत ही बुरा हाल था जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था. To New York, and it was completely unplanned, but it was destined. So I can't tell you the whole story over this video, but we are here, and this is the fantastic view of the skyline here and the towers here, and this is New York. So now it is okay for us. Earlier we were like frightened to see the whole bad scenario of the city. We took the metro train over here named as Path, and we are now in World Trade Center, and that was the white station where we landed. Had all the eateries and everything, and now we are out. And yes, it has all sorts of skyscrapers and has a lot of public. Now we are heading to Brooklyn Bridge. Let's see how it goes. The one in front with the flag is the famous Brooklyn Bridge, और skyscrapers तो आप देख ही सकते हैं. काफ़ी हैपनिंग सिटी है. सैन फ्रांसिस्को में तो कोविड के कारण बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं था, बट यहाँ पे हम जो पाथ नाम की ट्रेन से आए उसमें बहुत ज़्यादा ही हल्ला था. सामने आइसक्रीम शॉप्स हैं. यहाँ आइसक्रीम शॉप्स एक म्यूज़िक देती हैं, म्यूज़िकल शॉप्स होती हैं. ब्रुकलिन ब्रिज. और न्यूयॉर्क ने हमें ऐसे अचानक बुलाया हमारी फ़्लाइट लेट करके कि हमें पता भी नहीं कि लेफ़्ट में कौन सा ब्रिज है. लोग न्यूयॉर्क बड़ी तैयारी से आते हैं, और यहाँ क्राउडेड काफ़ी ह्यूमिड वेदर है. एटलांटा और सैन फ्रांसिस्को के कंपैरिजन में तो काफ़ी गर्म है यहाँ पे. व्यू बहुत अच्छा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है. यही है दौड़ता भागता शहर न्यूयॉर्क. और न्यूयॉर्क आके काफ़ी होमली फील हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा क्राउड है, इतना हल्ला है.
लाइवली है कह सकता हूँ। थोड़े चैलेंजेस भी दिख रहे हैं कि बहुत ही टफ होगा यहाँ पे सस्टेन करना, बट ऑल टुगेदर एन इंटरेस्टिंग एंड अनप्लान्ड विजिट। यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट है, ये टूरिस्ट प्लेस के पास में, सब जैसा बिल्कुल नॉर्मली किसी मेट्रो में होता है। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है अमेरिका में जब इतना बुरा हाल हो गया है कि बिल्कुल जनता ही जनता है, स्ट्रीट मार्केट है। Ice cold water $1. dollar water ice cold water $1. तो एक ये तमिल दुकान मिली है और डॉलर कोड़ा बोल रहा है, और $1 में वो पानी दे रहा है। तो आइस कोल्ड वाटर $1, और उसके एक्सेंट से भी पता चल रहा है कि इंडियन एक्सेंट है। ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एरिया। फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। हॉल, और ये न्यूयॉर्क का शायद फ्लैग होगा, और ये लोग भी प्राइड वीक मना रहे हैं, प्राइड मंथ मना रहे हैं गेस। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एरिया, चार्जिंग बुल एरिया ऑफ न्यूयॉर्क, बहुत ही बिजी। और सबसे मज़े की बात है, रोड साइड वेंडर्स मिले, उसमें से एक तमिल वाला लग रहा था, उसने बहुत प्यार से बोला, ये भैया वेज फलाफल खाओगे क्या भैया। इसमें फ़ोटो खिंचाने का भी हमारी मन नहीं हो रहा है, इतनी भीड़ देख के। जैसा गौ माता के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं ये लोग, बुल के साथ खिंचाते हैं, शायद संस्कृति में यही कॉमन है। और इस साइड में दुकानें हैं और बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, रोड साइड मार्केट है। हमने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका में भी कोई ऐसी जगह होगी। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं, बट हाँ बिल्कुल बॉम्बे जैसा हाल है। और बॉम्बे तो मतलब सुंदर है फिर भी, और अच्छा मेंटेन्ड है आइकन से। यहाँ तो और बुरा हाल है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। हर्षा, आपको कैसा लग रहा है सारा अमेरिका घूमने के बाद यहाँ आने में? और स्नेहम, तुम्हें मज़ा आया क्या? हाँ। सबसे अच्छा लगा न्यूयॉर्क? यस। सबसे अच्छा अभी तक जितना घूमा उन सब में सबसे अच्छा है ये? नो। सो गुस्सा हो रहे हो क्या? इनका म्यूज़ियम हमने अटलांटा में भी देखा था, और जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अमेरिकन इंडियन है। व्यू काफ़ी अच्छा है, अंदर जाने का टाइम नहीं है, बाहर बिल्डिंग बहुत अच्छी है। फेरी की तरफ जाएंगे और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखेंगे। लास्ट अट्रैक्शन जो हो सका था इस ट्रिप का वो था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और हम उसके पास भी पहुंच गए हैं। और यहाँ से एक फेरी मिलती है जो कि आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक ले जाती है, बट हमारी फ़्लाइट रात को है तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं और हम सीधे वापस जाने वाले हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखने मिल रही है कि लोग डांस कर रहे हैं, सबने एक ब्लूटूथ स्पीकर ईयरफोन लगाया हुआ है, और एकदम साइलेंस है बाहर, पर उन सबको एक बहुत लाउड म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा मोस्ट लाइकली। फ्री स्टाइल डांसिंग है, बहुत ही वेस्टर्न अप्रोच है और इंटरेस्टिंग है। बट यहाँ पे भी सैन फ्रांसिस्को की तरह गांजे की यानी कि marijuana की बहुत स्ट्रॉन्ग बदबू है, या उसको लोग खुशबू भी कहते हैं तो वो दिख रहा है सिटी के ओवरऑल प्रोफाइल पे बहुत ही स्ट्रांगली इमेंस स्ट्रक्चर उनका डिमोलिश दिखता है, अफेक्टेड दिखता है बाय marijuana। तो उस तरीके के चैलेंज सोसाइटी में यहाँ बहुत ज़्यादा होंगे, बट स्ट्रक्चर वाइज और एक दिन में जो देख सकते थे वो हम सब देख चुके हैं, और हम वापस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ये सारा रिस्क लेना और एयरपोर्ट से बाहर निकलना सक्सेसफुल लग रहा है? यस, स्नेहम स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी। स्नेहम कैसे बनते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी? ऐसे ऐसे, वाह भाई वाह सोहम जी। ये दिख रही है बिग बस। न्यूयॉर्क हर यूएस की बड़ी सिटी की तरह बिग बस यहाँ पे टूर कराती है, और ये है बिल्डिंग्स, और अब हम रिटर्न पाथ पे हैं। एंड बाय बाय स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ऑन रिटर्न हम फिर से वापस आ गए हैं। ये है इनका बुल,
और इतने लोग लाइन लगा के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बहुत ही पैथेटिक सिनेरियो है। और वो जो भाप निकलती हुई दिख रही है, एक्चुअली मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि पुराने शहरों में जहाँ पे जैसे पानी का गैस का सप्लाई होता है, वैसे स्टीम का सप्लाई होता है, जिसका इंडस्ट्रियल और एज एनर्जी काफ़ी यूज़ होता है। पुराने एरिया में एक नेटवर्क है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका ही स्टीम ये किसी कारण से रिलीज़ करते हैं। बुल के सोवेनियर्स भी बेच रहे हैं, रोड साइड एकदम दुकानें लगी हुई हैं। बहुत ही कंफर्टिंग सिनेरियो है, बट यूएस में ऐसा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए अभी तक। और यहाँ हुए इवेंट्स यहाँ नीचे लिखे भी हुए हैं, जैसे ये यूरोपियन जर्नलिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, वैसे ही ये जो नेक्स्ट है ये इंडिया के बारे में भी लिखा है कि यहाँ नेहरू जी आए थे अक्टूबर 17, 1949 को और स्पीच दी थी, अगर आप पढ़ सकते हो तो। ऐसे ही स्ट्रीट पे सबका मेंशन है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ चिले का ये नेक्स्ट है और ये स्ट्रीट का व्यू है। का ट्रिनिटी चर्च है, वॉल स्ट्रीट पे हैं अभी हम, और यहाँ सभी बिल्डिंग बहुत ही ह्यूज और ब्यूटीफुल हैं। वेदर यहाँ का समर्स में बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत ही ह्यूमिड और बहुत ही वार्म है अभी करंटली, बट यस व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। वी आर रियली एंजॉइंग। और हमारी फ़्लाइट वैसे तो डायरेक्ट इंडिया की थी, बट ड्यू टू वेदर चेंज हो गई और हमें मतलब न्यूयॉर्क ने जैसे बुला लिया हो, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था। हमने यहीं आके गूगल किया कि हमें कहाँ जाना है इतनी देर में, और हियर वी आर एंजॉइंग दिस व्यू। यहाँ के बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर से अब क्लियरली यूरोप का फील आ रहा है, और यूरोप का जो इम्प्रेशन है यहाँ के बिल्डिंग आर्किटेक्चर से बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि अमेरिका में यूरोपियंस का क्या सब कुछ उनका ही बेस वर्क रहा है। और बहुत सारी स्ट्रीट शॉप्स भी हैं यहाँ पे। ये बहुत ही फाइन कार्व्ड बहुत ही पुराना चर्च लग रहा है, या इनका कुछ मेन टावर एरिया टाइप है। स्टॉल में पनीर लिखा आ रहा है, ये इंडियन फूड का स्टॉल है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे। मतलब हमारे घूमने के दौरान ही हम बहुत सारे इंडियन लोगों को देख चुके हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी और इंडियन डायस्पोरा है न्यूयॉर्क में, क्लियरली विजिबल है। शॉप्स में भी काफ़ी इंडियन हैं, जैसे उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि भैया ले लो करके, तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। स्टार्ट करते हैं, उसमें एक आदमी दिखा रहा है, कैलकुलेटर है, वो अपने ब्रीफकेस से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा है, इस तरीके का डिपिक्ट किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मेट्रो स्टेशन है ये, या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन, और ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको आतंकवादियों ने उड़ा दिया था। और अब हम इससे अंदर जाएंगे और हमारा आगे एयरपोर्ट की तरफ वापस जाएंगे। ह्यूज बिल्डिंग, एक एक लाइन, एक एक फ्लोर है यहाँ का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है, बहुत ही ह्यूज। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एरिया जो अभी हमने बाहर से देखा था, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, और एक बढ़िया सा पर्सपेक्टिव यहाँ दिख ही रहा होगा कि कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है। अभी हम 4th फ्लोर से नीचे को कवर कर रहे हैं, और इक्वली ऊपर भी है, तो हमको मज़ा आ रही है। तो हम दीदी ये मेवाड़ स्टेशन है, और यहाँ से बाहर जाके बस लेंगे। बहुत बिजी स्टेशन है, और ओके एयरपोर्ट काफ़ी इफ़िशिएंट है। हमें अभी ये बस मिल रही है न्यूयॉर्क पेन स्टेशन से, जो हमें ले जाएगी एयरपोर्ट तक। और यहाँ प्रॉपर जैसा एयरपोर्ट पर डिस्प्ले सिस्टम होता है, बसेस के अलग अलग टर्मिनल हैं और अलग अलग नंबर्स हैं। यू कैन सिंपली जस्ट गो टू दैट प्लेटफॉर्म एंड टेक दैट। rushful day, we are back at the airport, and we are heading to our gate. Meanwhile we saw this, and this is really heartwarming. So this is the veteran honor wall to witness veterans from
New York would be placed here with their photos, and that's the real way one should value army.